All right. So first of all, welcome everyone. We kind of missed the lecture number 4 last time because of the internet issue, but we will resume that now. And what is going to be the agenda for today's lecture? सबसे पहले we will understand basically what is the meaning of the error term. So all about that we will understand. Then हमने population regression function के बारे में discussion किया था. उसी का एक counter part है population sample regression function. So we will understand that concept, why does it come into being and इसका relevance क्या है. And you know, starting में जब chapter हमने start किया था, then we said we want to understand the basic ideas of linear regression. So what is the meaning of this linear? What does it mean कि आप variables में linear रहना चाहते हो या आपने parameters में linear रहना चाहते हो? That we want to understand. And what would it mean to have more than one variables in our model? So two variable or multiple variable में difference क्या होगा? My voice is breaking again. No, ma'am. Okay. Dimple is saying my voice is breaking. Sanskriti, are you also facing something like that? No, ma'am. It's clear. It's clear. Okay. Dimple, I think maybe you can check once at your end. Let me know if it is still breaking. Okay. Okay, I think looks like everything is fine. All right. So two variable or multiple variable का मतलब क्या होता है? We will understand that. And then finally, you know, the main core portion of this entire course, which is estimation of parameters. Parameters को आप estimate किस तरीके से करोगे? We will understand all of that. ठीक है? So before going further in the topics, if you guys have any concerns or any queries from the last 3 lectures that we have done, so let me know. Otherwise, we can, proceed. All good till the previous classes? Okay. All right. चलो तो फिर start करते हैं. तो just to give you a little bit of recap, हमने last time जो है कहाँ कहाँ किस किस चीज़ के बारे में बात कर ली थी. हमने population regression function, population regression line, ये सब के बारे में बात की थी. तो population regression function क्या है? हमने बोला था population regression function is basically it tells us कि for a particular value of x, what is the expected value of y, what is the conditional mean of y. ठीक है. So basically हमने जो है अगर हम लोग अपने population regression function की बात करें तो population regression function क्या था हमारे लिए? Expected value of y given xi that is equals to b1 plus b2 xi, right? That was the systematic form हमने देखा था. And population regression line क्या थी? इसी का graphical representation was population regression line. ठीक है. So this was the deterministic part or the systematic portion, right? और फिर हमने ये भी देख लिया था कि अगर stochastic version, ऐसा version जहाँ पे आप y और xi के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहते हो, so उसको हम लोग किस तरीके से लिख रहे थे? That yi is nothing but b1 plus b2 xi plus ui. ठीक है. So this was basically my stochastic version, right? So इसको हमने क्या बोला था? Stochastic population regression function. ठीक है. Wherein you add a error term or random error term, whatever you want to call it. ठीक है. So ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. ठीक है. अब फिर हमने क्या so we said आपका जो कंडीशनल मीन है, आप फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ y, और हमारे x और y क्या थे यहाँ पे? x was the family income that we were talking about and y was the SAT score या जो मैथ स्कोर जो है हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे. तो फॉर अ पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट दैट यू लाई इन, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ मैथ स्कोर दैट यू आर गोइंग टू हैव, उसका रिलेशनशिप वाज कॉल्ड पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन. एंड
दिस वॉज द स्टोकेस्टिक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन. ठीक है, सो आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस एंड यू ऑल अंडरस्टूड इट प्रॉपरली. एंड अब हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो एरर टर्म है इसका सिग्निफिकेंस क्या है. व्हाट ऑल डज दिस एरर टर्म इंक्लूड, व्हाई वी एडेड द एरर टर्म बेसिकली. सो वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस एरर टर्म. सो बेसिकली गाइस, जो एरर टर्म है इसका मेन मकसद क्या है, वो सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करना जो आपके मैथ्स स्कोर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. आपका मैथ्स में कितना स्कोर आ रहा है, दैट विल नॉट ओनली बी डिटर्मिन्ड बाय व्हाट योर फैमिली इनकम इज. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. हाउ मच यू आर स्टडिंग, what is like, do you have siblings, what kind of school are you going in, right? How much self study are you doing? ठीक है, आप naturally आपका IQ कितना है, you know, how much do you like the subject or not. ये सारे फैक्टर्स जो है वो डिटरमिन करेंगे कि आपका मैथ्स का स्कोर क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली इनकम. यस, फैमिली इनकम इज अ फैक्टर, बट देर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो इस चीज को अफेक्ट करेंगे, राइट? यस. सो जो आपका एरर टर्म है, यस, हम जो हमारा इंटरसेप्ट कोफिशिएंट होता है और जो स्लोप कोफिशिएंट होता है वो क्या डिटरमाइन करता है? वो ये डिटरमाइन, देखो जैसे ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि जब आपकी वाई एक्स की वैल्यू 0 होगी तब आपकी एवरेज वाई वैल्यू क्या है. सो इफ यू सी हियर, इफ आई पुट दिस वैल्यू एज 0, सो बेसिकली अगर आपका एक्स वेरिएबल 0 वैल्यू लेता है तो आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ वाई क्या होगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरसेप्ट. एंड आपका जो स्लोप कोएफिशिएंट है उसका मतलब क्या होता है कि if you change your x value by 1 unit, if you increase it by 1 unit, by how much units your average value of y will go up or down, whatever the case may be. उस तरीके से we will interpret it. Okay? Okay, ma'am. All right. So error term basically, you know, it represents the influence of all the variables that you have not included in the model. That वो सारे वेरिएबल्स जो आपके मैथ्स स्कोर को इफेक्ट कर रहे थे बट आपने अपने मॉडल में ऐड नहीं किए हैं, वो सारे वेरिएबल्स का जो इन्फ्लुएंस है वो आप एरर टर्म में, व्हेन यू ऐड एन एरर टर्म यू इंक्लूड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द वेरिएबल्स दैट वर अफेक्टिंग मैथ्स स्कोर and they were not included in the model. Okay, वो सारे चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव दिस एरर टर्म. ठीक है, सो दिस इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द वेरिएबल्स विच आर अफेक्टिंग योर मैथ स्कोर, बट आपने उनको मॉडल में एक्सप्लिसिटली ऐड नहीं किया है. ठीक है, सो जैसे यहाँ पे हमने फैमिली इनकम को ऐड कर दिया है, ऐसे ही मैं बहुत सारे और वेरिएबल्स को भी ऐड कर सकती थी. लाइक यू नो, आपने इससे पहले मैथ्स पढ़ा है कि नहीं, आपका सिटी ऑफ रेसिडेंस कहाँ है, ये सारी चीजें मैं अलग अलग फैक्टर्स ऐड कर सकती थी. सो जैसे जैसे आप वेरिएबल्स ऐड करते जाओगे वो सारे वेरिएबल्स का इन्फ्लुएंस आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, वो सारे वेरिएबल्स फिर आपके एरर टर्म से रिमूव होते जाएंगे. ठीक है, बट टिल यू डू दैट, everything that can influence your math score becomes a part of the error term. ठीक है, ओके. एक तो चीज हो गई ये, दिस इज द रेलेवेंस फॉर एरर टर्म. अब दूसरी चीज क्या है, आप अब ये तो बोल दिया कि चलो जो जो वेरिएबल्स हमने ऐड नहीं किए वो उनको ऐड करने का एक तरीका है, उनकी इन्फ्लुएंस को ऐड करने का एक तरीका है रैंडम एरर टर्म. बट सपोज आपने सब कुछ ऐड कर दिया, फैमिली इनकम, एजुकेशन, सिबलिंग्स हैं कि नहीं, सिटी ऑफ रेसिडेंस क्या है, आपका IQ कितना है, सारी चीजें आप ऐड कर दो, बट there is still going to be some randomness in your math score. क्यों हो सकता है that day you might not be feeling well, you know, it just turns out that आप एग्जाम ही नहीं देना चाहते थे. There could be n number of reasons. Human behavior
इनहेरेंटली इतना रैंडम है, और देयर इज सो मच अनप्रिडिक्टेबिलिटी कि इवन इफ आप you can take care of everything, you can add anything that you want, there will still be some randomness that is there in social sciences, basically, because you're observing humans koi we are not robots that okay, in this situation we will only do that. ठीक है? So because of this randomness in human behavior, you are bound to have some variations even if you have the same variables. जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी सबकी वैल्यू चाहे आप सेम रख लो, हो सकता है तब भी आपका जो मैथ स्कोर है वो अलग हो, राइट? चाहे आपकी फैमिली इनकम सेम हो, आपकी सिबलिंग्स के नंबर सेम हो, आपकी एजुकेशन सेम हो, सिटी ऑफ रेजिडेंस सब कुछ सेम हो, सेम कॉलेज में जाते हो, सब कुछ सेम हो, ठीक है, आईक्यू भी सेम है, बट फिर भी देयर इज लॉट ऑफ रैंडमनेस दैट prevails in humans, because of which you are bound to have some error, ठीक है, which also justifies the addition of error term. ठीक है? So inherent randomness है. Because of which also you add your error term. ठीक है? What could be one other possible reason why we are adding the random error term, which is हो सकता है कि आपने मेजरमेंट करने में कोई दिक्कत, कोई एरर कर दिया हो. देयर माइट बी सम मेजरमेंट एरर्स, राइट? हो सकता है कि आपने अपने जो इनकम है उसको मेजर करने में कुछ गलती कर दी हो. वो सारी चीजें भी आपके एरर टर्म में ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं. ठीक है? सो कई कई जगह राउंडिंग एरर्स होते हैं, कई बार राउंड ऑफ कर देते हो, राइट? सो जैसे इनकम तो टू बिगिन विद इज अ वेरिएबल जिसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है. नोबडी वांट्स टू रिवील देयर इनकम, राइट? सो यूजुअली जो भी इनकम रिलेटेड सर्वेज होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या एनीवेयर, यूजुअली उस चीज को करेक्ट किया जाता है, क्योंकि नोबडी वांट्स टू से आप अपने घर में पेरेंट्स से भी पूछोगे ना, किसी कोई नेबर आएगा या घर में कोई भी किसी से पूछेगा कि अच्छा आपकी इनकम कितनी है, तो पीपल डोंट यूजुअली आंसर इट वेरी वेल. दे से टर्म्स लाइक भगवान की दया है, सब चल रहा है, पेट भर जाता है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स लोग यूजुअली यूज करते हैं. तो इमेजिन अगर सर्वे में एक चीज है कि आपकी इनकम क्या है, तो पीपल विल बी लाइक नहीं नहीं, वी विल नॉट, हम अपनी इनकम बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि पीपल फियर ऑल्सो कि दे माइट गेट they might be removed, उनकी कुछ access from some policies or some benefits might get removed because of that also. They try to understate their income. ठीक है? So जब भी वो surveys होते हैं उसमें फिर proper upward correction होता है in the income data, कि people know कि understatement ही हुई होगी income की, so उस चीज को correct किया जाता है. So because of these reasons also there are some measurement errors which can happen, जो आप अपने एरर टर्म में अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. आपका जो एरर टर्म है वो ये सब चीजों को भी इंक्लूड करता है. ठीक है? सो एरर्स ऑफ मेजरमेंट. एंड देन देर इज अनदर रीजन विच इज, देखो, हो सकता है कि आपके पास दुनिया में सबसे बेस्ट डेटा हो, जितने वेरिएबल्स आपको चाहिए एक मैथ के स्कोर को रिप्रेजेंट करने के लिए, या जो भी चीजें मैथ के स्कोर को इफेक्ट करती हैं. यू माइट हैव थाउजेंड ऑफ थिंग्स, यू माइट हैव डेटा ऑन ऑल ऑफ दैट ऑल्सो, बट देर इज अ प्रिंसिपल, ओकम्स रेजर. सो देर वॉज अ फिलोसोफर, ओकम्स. उनकी फिलोसफी ये थी कि चीज़ों का डिस्क्रिप्शन जो है वो सबसे सिंपल रखना चाहिए until and unless it is proven inadequate. तो डिस्क्रिप्शन को जितना आप सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो, और चीज़ों को ऐड तभी करो जब आपको वो चीज़ें डिस्क्राइब करने में inadequacy हो रही है with given all the variables that you have. ठीक है? मतलब this is how we interpret this in econometrics, but this was a philosophy idea basically that was there, कि चीजों का डिस्क्रिप्शन जितना सिंपल रख सकते हो आप उतना सिंपल रखो. आप 1000 वेरिएबल ऐड कर दोगे मैथ स्कोर को डिटरमाइन करने के लिए, it is not feasible in the real life for people to understand that.
हम क्या समझ सकते हैं, 2-3 वेरिएबल्स हो, हर वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट हो रहा है मैथ स्कोर पे, ह्यूमन माइंड उस चीज को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकता है। बट 1000 वेरिएबल्स अगर आपने ऐड कर दिए अलग अलग तरीके के, इवन इफ यू आर एबल टू बेस्ट प्रिडिक्ट कि मैथ स्कोर क्या होगा किसी बच्चे का, but it will be of no value to us because we will not be able to understand that ये 1000 वेरिएबल्स किसका क्या इम्पैक्ट है, किसका क्या मीनिंग है। इसीलिए डिस्क्रिप्शन को आप जितना सिंपल रख सको उतना सिंपल रखो, ठीक है। इवन इफ आपके पास ज्यादा वेरिएबल्स पे डेटा है, यू नो, बट शायद उनका सम टोटल इफेक्ट उनका इतना कम हो कि इट इज बेटर नॉट टू ऐड ऑल ऑफ दोज वेरिएबल्स इन योर मॉडल। सो हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स की एजुकेशन क्या थी, आपके पेरेंट्स की एजुकेशन क्या थी, आपके सिबलिंग्स की एजुकेशन क्या थी, ये सारी ही चीजें इम्पैक्ट करती हूँ। बट मे बी ग्रैंड पेरेंट्स की एजुकेशन कितनी थी, इट माइट नॉट इम्पैक्ट सो मच, सो इवन इफ आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स पे डेटा है, जस्ट कीपिंग इट एज सिंपल एज पॉसिबल। और चीजों को ऐड तभी करना चाहिए जब आपको डिस्क्राइब करने में प्रॉब्लम हो रही है कि अच्छा अगर इतने वेरिएबल्स भी नहीं लिए तो डिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सो दिस प्रिंसिपल सेज डिस्क्रिप्शंस should be kept as simple as possible until proved inadequate, ठीक है। only if it is inadequate for you to describe everything you should add more variables, ठीक है। so because of that also we don't need to add everything। तो जो भी सारे variables हैं जिनका इफेक्ट बहुत ही कम है वो सारे आपके एरर टर्म में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। so because of all these reasons it becomes important for us to add a random error term which can take into effect all the things which you were not able to add in your model। तो वो सारा जो इम्पैक्ट है वो आप एरर टर्म के थ्रू समझ सकते हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस जस्टिफाई अस टू यूज द एरर टर्म इन आवर मॉडल, ठीक है। डज दैट सीम फाइन? डज इट लुक फाइन? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? All good, guys? Any doubts? Okay. Any audio video problems? Okay. Dimple, is the audio clear now? ओके परफेक्ट, चलो जी। तो ये हमने थोड़ा सा समझ लिया कि हमारा जो एरर टर्म है उसका सिग्निफिकेंस क्या है या उसको क्यों ऐड किया जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर important topic which is what is sample regression function। सो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन देखा था कि पूरी पॉपुलेशन के लिए अगर डेटा अवेलेबल है अलग अलग एक्स वैल्यूज के लिए, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई क्या क्या है, अगर उसको ग्राफिकली प्लॉट किया जाए तो जो भी लाइन बनेगी उसको पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन बोलेंगे, और जो उसका मैथमेटिकल फॉर्म है उसको पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन बोलेंगे। बट अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द चैलेंज दैट वी आर फेसिंग? द चैलेंज दैट वी हैव इज we don't have the population data, and turns out we will never have the population data। because of that only we pick up samples, क्योंकि हमारे पास population का डेटा कभी भी अवेलेबल नहीं होगा। that is why we have a challenge कि आपको sample information मिल रही है, उस sample information का यूज करके आपको population के बारे में कुछ information gather करनी है। तो हमारा गोल हमेशा क्या रहता है कि क्या मैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या होगा वो बता सकती हूँ जस्ट बाय यूजिंग सैंपल इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ये हमारा गोल होता है हमेशा। व्हाट इज द गोल? कैन आई फिगर आउट व्हाट इज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है, ओनली बाय यूजिंग द सैंपल डेटा। क्योंकि
अगर पॉपुलेशन का डेटा अवेलेबल है फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो सारा डेटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है और एवरेज वैल्यूज भी अवेलेबल हैं। वो किस तरीके की इक्वेशन में फिट होती हैं वो तो हम इजीली कंप्यूटर की मदद से जो है आराम से निकाल सकते हैं। बट हमारे लिए चैलेंज क्या है, पॉपुलेशन कभी नहीं मिलेगी। B1 क्या होता है कभी पता ही नहीं होगा, B2 क्या होता है कभी पता ही नहीं होगा। तो फिर उस केस में आप किस तरीके से उस चीज को एस्टिमेट करोगे? सो इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट B1 B2 और एनीथिंग, नाउ हाउ डू यू फिगर आउट कि पॉपुलेशन में किस तरीके का रिलेशनशिप होगा? विल इट बी लीनियर, विल इट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, विल इट बी क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक, किस तरीके का रिलेशनशिप होगा? सो दैट इज योर मेजर टास्क थ्रू आउट द इंटायर इकोनोमेट्रिक्स, कि आपको पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है यूजिंग सैंपल डेटा। ठीक है, सो इन दिस एंडेवर ये काम करने के लिए हमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। उसमें से पहला कॉन्सेप्ट है सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। अब सैंपल रिग्रेशन फंक्शन क्या होता है ये सब हम लोग समझेंगे, बट दिस इज बेसिकली आवर मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि क्या हम ये जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन था उसको एस्टिमेट कर सकते हैं यूजिंग सैंपल डेटा जिसपे हमारे पास एक्सेस होती है। आप जाके सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हो, आप सर्वे कंडक्ट कर सकते हो, दैट विल ओनली गिव यू सैंपल डेटा। ठीक है, सो सैंपल डेटा का यूज करके क्या पॉपुलेशन के बारे में कोई स्टेटमेंट दी जा सकती है। ठीक है, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो चलो जी फिर अब देखते हैं हमारा टास्क क्या है, PRF को एस्टिमेट करना यूजिंग द सैंपल। या हम पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन क्या थी? population regression line की equation is population regression function only, this one. ओके, ठीक है, all right. हम इसमें एरर टर्म नहीं ऐड करेंगे ना? so error term आप actual y value जब आप यहाँ पे ऐड करते हो, when you are ओके figuring out what is the actual y value, then you add it. ओके otherwise हमारा जो equation होता है, so you remember so हमारे पास इस तरीके के फॉर अ पर्टिकुलर x वैल्यू वी हैड मल्टीपल वैल्यूज फॉर y, बट हमने क्या किया, एवरेज वैल्यू लिया। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। ठीक है, सो इट टॉक्स अबाउट एवरेज वैल्यू ओनली। बट जब आप चाह रहे हो कि अच्छा भाई ये y और x है, इसको मैं मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो आप क्या करोगे, तो ये जो yi है दिस इज कंपोज्ड ऑफ दिस एवरेज वैल्यू plus some error that happened, and that error was this much. Okay, ओके so like that. Okay, चलो जी, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा गोल हमें समझ में आ गया, हमारा टास्क क्या था वो हमें समझ में आ गया है। तो हमारा टास्क क्या है, बहुत ही सिंपली PRF को एस्टिमेट करना यूजिंग सैंपल इंफॉर्मेशन या सैंपल डेटा। ठीक है, जब हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो फॉर अ पर्टिकुलर XI यू हैड मल्टीपल y वैल्यूज, राइट? जैसे कि एक ही इनकम लेवल मान लो ₹5,000 के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे अलग अलग बच्चों के मैथ स्कोर क्या क्या हैं वो सबका डेटा हमारे पास अवेलेबल था। किसी को 450 भी मार्क्स आए थे, किसी को 470 आए थे, किसी को 550 भी मान लो आए थे, 570 भी होंगे, 520 भी होंगे। So for a particular value of x in the population, there will be multiple y values. But in the real world, in the real life, with whatever sample data that you will have, आपको क्या मिलेगा, कोई एक पर्टिकुलर एक्स आई वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही वाई वैल्यू मिलेगी, एक इनकम लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही स्कोर मिलेगा आपको मैथ्स का। ठीक है, तो यू विल हैव वन वैल्यू ऑफ वाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच एक्स वैल्यू। तो गोल क्या है, क्या इसको एस्टिमेट कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके। ठीक है, अब हम अगर ये देखें, चलो मैंने एक सैंपल पिक किया, शायद मान लो उससे मैंने कुछ भी एस्टिमेट किया, जो भी तरीका है वो तरीके क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मान लो मेरे पास एक सैंपल था
सैंपल 1 बोल रही हूँ मैं इसको। फर्स्ट सैंपल था जिसमें मान लो 10 वैल्यूज थी, 10 अलग अलग इनकम ब्रैकेट्स थे, हर इनकम के कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर क्या होगा उसका डेटा मेरे पास था। अब मेरे पास मान लो एक और दूसरा सैंपल है, सैंपल 2, इसमें इनकम लेवल और अलग अलग स्कोर। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सैंपल्स हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस, तो भाई मैंने पहला सैंपल जो भी मेरा सैंपल है, इससे जो मेरा एस्टिमेट आएगा वो कुछ और आएगा। सैंपल 2 में अगर यूज करूंगी तो कुछ और एस्टिमेट आएगा, सैंपल 3 यूज करूंगी तो शायद इक्वेशन का कोई और एस्टिमेट आएगा। तो ऐसे तो मेरे पास 1000 सैंपल्स, तो 1000 अलग अलग एस्टिमेशंस फॉर पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, राइट। तो अगर आपके पास लाइक यू हैव मल्टीपल, विद एवरी सैंपल दैट यू हैव, जितने सैंपल्स होंगे उतने ही पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन जो है उसके एस्टिमेट्स होंगे आपके पास, राइट। सो एज योर सैंपल चेंज, योर एस्टिमेट विल ऑल्सो कीप चेंजिंग, ठीक है। दिस इज समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। क्यों? क्योंकि सैंपल में फ्लक्चुएशंस होंगे। किसी सैंपल में हो सकता है विद अ वेरी लो लेवल ऑफ इनकम, स्टूडेंट्स माइट बी गेटिंग हाई मार्क्स आपके सैंपल में, बट एक्चुअली में शायद ऐसा ना हो। सिर्फ एक ही बच्चा हो शायद जिसने बहुत हाई स्कोर हुआ हो और वो आपके सैंपल में आ गया, लेकिन फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो शायद लीनियर नहीं लग रहा है, ये तो इनकम इंक्रीज होने से स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस विद एवरी चेंजिंग सैंपल, यू विल सी कि आप के अलग अलग एस्टिमेशंस आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो हमारे पास अगर के डिफरेंट सैंपल्स हैं, ठीक है, सो हमारे पास के अलग अलग एस्टिमेट्स होंगे फॉर पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। तो ये जो एस्टिमेट हम लोग करेंगे पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है। सो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है। ये एक तरीके से क्या है? दिस इज एन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है। सो जो सैंपल डेटा है उसको यूज करके आप क्या करना चाह रहे हो? पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को एस्टिमेट करना चाह रहे हो, ठीक है। सो दैट विल बी कॉल्ड अ सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है। ओके, सो बेसिकली फंडा क्या है? पॉपुलेशन डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, वी हैड अ पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन या फिर पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन कह लो। अब सिमिलरली सैंपल डेटा जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल हैव अ सैंपल रिग्रेशन फंक्शन विच, और यू कैन से सैंपल रिग्रेशन लाइन, जिसका मेन काम क्या होगा कि क्या आप इस पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को एस्टिमेट कर सकते हो विदाउट इवन लुकिंग एट द डेटा, ठीक है। दैट इज बेसिकली योर टास्क, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सी कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। सो सबसे पहले तो जस्ट टू गिव यू अ रिमाइंडर, जो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है या पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है इस केस में, वो हमारे पास क्या था? इट वाज नथिंग बट expected value of y given xi, that is conditional mean of y, that is b1 plus b2 xi, right। ये क्या है? आपका पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है। सैंपल डेटा को कलेक्ट क्यों किया जा रहा है? इसको एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। सो अब मैं क्या कर रही हूं, आई विल जस्ट ट्राई एंड रिप्रेजेंट इट इन अ मैनर कि मैं इस चीज को अच्छे से लिख पाऊं, ठीक है। तो देखो, सो द सैंपल काउंटर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन विल बी नथिंग बट, मुझे क्या करना है? एक्सआई वैल्यू तो मेरे को पता होंगी, राइट। व्हाट इज माय इनकम वैल्यूज, व्हाट ऑल इनकम लेवल्स दैट आई हैव, उसके लिए मेरे पास डेटा अवेलेबल होगा, राइट। B1 क्या है मुझे नहीं पता, बट मेरा काम क्या है? B1 को एस्टिमेट करना। सो आई वांट अ एस्टिमेट ऑफ B1 प्लस
सॉरी, B2 मेरे पास क्या है नहीं पता, B2 को मैं एस्टिमेट करूंगी सैंपल डेटा का यूज करके। B1 क्या है मुझे नहीं पता, B1 को भी मैं एस्टिमेट करूंगी सैंपल डेटा का यूज करके, राइट। और ये मीन वैल्यू क्या होगी ये भी मुझे नहीं पता, राइट, अनलेस आई हैव द इंटायर पॉपुलेशन। सो मेरा मकसद क्या होगा कि मैं एवरेज वैल्यू को भी एस्टिमेट कर पाऊं, राइट। सो yi hat, वी आर यूजिंग hat, क्यों, क्योंकि आई एम सेइंग दैट दिस इज एन estimate of this value. I'm writing small b1 because this is an estimate of b1. I'm writing b2 because this is an estimate of, sorry, b1, I wanted to say b1 and here it is b2. ठीक है? Ma'am, Yeah. y1 hat is the estimate of expected y value or the y value. x y वैल्यू तो एक्चुअली में रियलाइज हो जाती है। देखो सैंपल डेटा क्या होगा कि 5,000 इनकम पे आपके बच्चे जो हैं उनका स्कोर है 550, और मान लो 10,000 इनकम पे स्कोर क्या है 570। तो ये एक्स आई वैल्यू है और ये वाई आई वैल्यू है। जब आप सैंपल डेटा देखोगे तब आपको वाई आई वैल्यू तो दी हुई है, राइट, फॉर अ पर्टिकुलर एक्स वैल्यू व्हाट इज द वाई वैल्यू, वो चीज तो आपको गिवन होगी, राइट। बट आपका काम क्या है, ये रिलेशनशिप को एस्टिमेट कर पाना। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? सो you will have access to xi values and yi values. अब इसको ना थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखो जब आपके पास पॉपुलेशन थी, जब हमारे पास पूरी पॉपुलेशन अवेलेबल थी, तब हमारे पास क्या था कि भाई ये इनकम लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चों के अलग अलग स्कोर्स ये हो सकते हैं, ये इनकम के कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चों के अलग अलग स्कोर्स ये हो सकते हैं, राइट। ये सब पॉसिबिलिटी थी। ये हो गया पॉपुलेशन डेटा। बट अब आपको जब सैंपल डेटा दिया जाएगा, सैंपल में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, तो सैंपल में जो डेटा है वो किस तरीके का हो सकता है, वो इस तरीके का होगा कि अच्छा इस इनकम के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वो बच्चा मिला जिसका स्कोर सबसे लोवेस्ट था, इस इनकम के कॉरस्पॉन्डिंग शायद आपको वो बच्चा मिला जिसकी स्कोर सबसे ज्यादा था, इस इनकम के कॉरस्पॉन्डिंग यू गॉट दैट चाइल्ड जिसका स्कोर यहां था, जैसे यहाँ पे इस तरीके से आपको डेटा अवेलेबल होगा जब भी आप सैंपल पिक करोगे, राइट। सो आर यू फॉलोइंग एटलीस्ट दैट? Yes, ma'am. ठीक है, So we are estimating the average y value. यस। सो मेरा मेरा बिगिन विद मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं ये वाली जो लाइन है इसको एस्टिमेट कर पाऊं, ठीक है। तो मेरे पास एक्चुअल एक्स वैल्यू और एक्चुअल वाई वैल्यू, सो आई विल हैव पेयर ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज, आई विल हैव एक्सेस टू दैट। बट आपका गोल क्या है कि भाई ये वैल्यू क्या होगी या ये वैल्यू क्या होगी या ये वैल्यू क्या होगी, ये पता करना। और ये सारी वैल्यूज क्या हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई फॉर अ पर्टिकुलर एक्स वैल्यू, फॉर अ पर्टिकुलर इनकम लेवल, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो रियल वर्ल्ड में जब डेटा होगा, वी विल नॉट हैव एक्सेस टू द इंटायर पॉपुलेशन, वो हमारे पास नहीं होगा। इन द रियल वर्ल्ड वी विल हैव सम सैंपल्स, सैंपल मतलब कि भाई एक एक इनकम पे एक 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 इनकम, फैमिली इनकम लेवल पे एक एक बच्चे जो हैं उनके स्कोर्स क्या हैं वो अवेलेबल होगा हमारे पास। सो वी माइट हैव दीज 10 वैल्यूज अवेलेबल टू अस, एंड ये 10 वैल्यूज के बेसिस पे हमें एक एस्टिमेट करना पड़ेगा कि अच्छा आपकी लाइन है वो ऐसी होगी या ऐसी होगी या कैसी होगी, ये आपका टास्क होगा, राइट। अब हो सकता है देखो, अब आपको जो रियल वर्ल्ड में डेटा मिले शायद आपके पास जो सारा डेटा है वो ऐसा ही हो जाए, ठीक है। तब आपको क्या लगेगा कि हाँ हाँ शायद आपकी जो लाइन है वो कुछ इसी तरीके की है, राइट। शायद रियल वर्ल्ड में जो डेटा आपको मिले सैंपल में वो शायद इस तरीके का हो, उस केस में आप अगर जो भी लाइन बनाना चाहोगे वो शायद इस तरीके की होगी, राइट। अब रियल वर्ल्ड में अगर जो डेटा मिला आपको शायद अगर वो इस तरीके का मिल गया तो आपको क्या लगेगा कि इनकम से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारे बच्चों के सेम ही तो मार्क्स आ रहे हैं, राइट। सो इन दैट केस यू माइट हैव अ रिग्रेशन लाइन, समथिंग लाइक दैट, आपका जो एस्टिमेट होगा इस पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन का, ठीक है। सो जैसे जैसे आपके सैंपल्स चेंज होते रहेंगे, योर आइडिया ऑफ व्हाट दैट एस्टिमेशन शुड बी दैट विल कीप चेंजिंग,
ठीक है। सो ये हमारा आइडिया होता है कि बेस्ड ऑन सैंपल पॉइंट्स यू वांट एन एस्टिमेट ऑफ दिस लाइन, कि बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से इसका एक एस्टिमेट निकाल सकते हो, ठीक है। सो वेरी वेरी सिंपली पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को एस्टिमेट करना है यूजिंग सैंपल डेटा, दैट्स इट, दैट्स द एंटायर ऑब्जेक्टिव। इज दैट फाइन गाइस, इज इट मेकिंग सेंस? समझ Yes, में आ ma'am. रहा है? ओके, मान्या ऑल गुड? Yes, ma'am. Dimple, Sanskriti, guys, all fine? Okay, all right, perfect. चलो जी, तो अब आपको, आपका जो काम था वो क्या था कि भाई ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन को मैं कितना एक्यूरेटली मेजर कर सकती हूँ। तो आपको तो ये भी नहीं पता, आपको y पता है, एक्चुअल y जो आपके x के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्चुअल y आया है वो आपको पता है, बट एवरेज वैल्यू क्या होगी वो नहीं पता। तो आप क्या करते हो, दिस इज एन एस्टिमेट ऑफ दिस, दिस इज एन एस्टिमेट ऑफ दिस, दिस इज एन एस्टिमेट ऑफ दिस। सो लेट मी जस्ट राइट ऑल ऑफ दैट प्रॉपरली। सो ये जो वाई आई हैट है, इसका मतलब क्या है, जब भी आप किसी कोई भी लेटर के ऊपर हैट लिख देते हो तो इट्स अ कन्वेंशन विच मीन्स कि ये उसका एस्टिमेटर है, ठीक है, कि वो एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं पता बट आप उसको एस्टिमेट, उसका एक एस्टिमेटर है, उस कुछ वैल्यूज यूज करके उसको फिगर आउट कर रहे हो आप अपने तरीके से, ठीक है। सो जो वाई आई हैट है विच इज यू नो b1 प्लस b2 xi, अब यहाँ पे ये जो अलग अलग चीजें हैं ये क्या है, जो वाई आई हैट है दिस इज एन estimator of the average value of your math score for a given income level, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब ये B1 क्या है, आपको तो कैपिटल B1 क्या है जो पॉपुलेशन में था ये क्या है ये भी नहीं पता, तो अब ये जो स्मॉल B1 है ये क्या है, एस्टिमेटर ऑफ कैपिटल B1। सिमिलरली ये B2 क्या है ये भी नहीं पता आपको तो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एस्टिमेटर ऑफ B2, ठीक है। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट एन एस्टिमेटर इज, एस्टिमेटर क्या होता है, लेट मी जस्ट राइट दैट आल्सो। एस्टिमेटर या फिर यू नो, डू यू रिमेंबर व्हाट डिड वी यूज टू कॉल इट, सैंपल स्टैटिस्टिक, डू यू रिमेंबर दैट, सैंपल Yes, ma'am. स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो सैंपल स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है, या फिर एस्टिमेटर, ऐसा कोई भी फॉर्मूला जो सैंपल वैल्यूज का यूज करके बनाया गया है, ठीक है। सो इट इज अ रूल or a formula which tells you how you can estimate the population parameter at hand. ठीक है, आप किसी भी एस्टिमेटर में, एस्टिमेटर हमने क्या बोला है, एक फॉर्मूला होता है या एक रूल होता है, उस फॉर्मूला में जब आप सैंपल वैल्यूज पुट करके कोई एक नंबर लेके आ जाते हो उस चीज को फिर क्या बोलते हैं हम लोग, एस्टिमेट, ठीक है। एस्टिमेटर क्या है, फॉर्मूला, एस्टिमेट क्या है, a value which you get when you put the sample values in the estimator, that is called estimate, ठीक है। so estimate, a particular numerical value of the estimator is called an estimate, उसको हम लोग estimate बोलते हैं, ठीक है। सो जैसे कि जब आपको पॉपुलेशन मीन नहीं पता तो हम लोग क्या करते हैं, जो सैंपल है उसमें वैल्यूज देखो, सैंपल मीन निकालो, सैंपल मीन को यूज करते हैं पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए, राइट। तो आपका जो सैंपल मीन है x बार बाय n, वो क्या हो गया, दैट इज एन एस्टिमेटर, ठीक है।
और जो भी आपके जो भी सैंपल में एक्स वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज जब आप इसमें पुट कर दोगे, और मान लो 10 ऑब्जर्वेशंस थे, सबके वैल्यूज पुट करके डिवाइडेड बाय 10 किया, तो जो वैल्यू आई, मान लो वैल्यू आ गई 2.4, तो ये जो है दिस इज एन एस्टिमेट. ठीक है, दिस इज एस्टिमेटर, दिस इज एस्टिमेट. ठीक है, इज दैट फाइन? तो हमारा जो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है, that is nothing but trying to estimate our population regression function. So that is nothing but yi hat equals to b1 plus b2 xi. Is that fine, guys? All good till this point? Let me know if you want to write something. ठीक है, if everything is good, let's go ahead. Yes, ma'am. ओके, परफेक्ट. चलो, तो अब देखो जी, ये तो हो गया सैंपल रिग्रेशन फंक्शन. ठीक है, अब हो सकता है कि ये जो आपका एस्टिमेट हो, ये तो क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई आई, राइट? अब जैसे हमारे एक स्टोकेस्टिक वर्जन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन था, अब उसी तरीके से हमारे पास एक स्टोकेस्टिक वर्जन ऑफ सैंपल रिग्रेशन फंक्शन भी होना चाहिए, राइट? व्हाट इफ आई वांट टू see what is the relationship between yi and xi that I have received using the sample. ठीक है, so for the population जो हमारा stochastic version था वो क्या था कि yi is what, b1 plus b2 xi, and then we had an error term here, right? This was my stochastic form for population regression function, right? अब जो है, अब यहाँ पे ये क्या है, this is an estimate of average value, this is an estimator for b1, this is an estimator for b2, and this is your actual xi value. ठीक है, अब आपको अगर स्टोकेस्टिक सैंपल रिग्रेशन फंक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करना है, अब उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? जब आप स्टोकेस्टिक वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तब आपको एक्चुअल वाई आई और एक्स आई के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो बताना है. ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, यू कैन डू दिस. अब देखो, ये तो आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ वाई आई है, राइट? और एक आपकी एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई आई थी. ठीक है, सो एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई आई जो है वो क्या होनी चाहिए? हम जैसे पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में क्या बोल रहे थे, आपकी जो एक्चुअल वाई आई है वो क्या होगी, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई गिवन एक्स आई, उसमें कुछ ऊपर नीचे जो भी एरर था, राइट? यस और नो? इसी तरीके से पॉपुलेशन का स्टोकेस्टिक वर्जन हमने डिटरमाइन किया था, राइट? डू वी ऑल रिमेंबर दैट कि कोई एक पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्कोर क्या होगा, तो हम क्या करते थे कि अच्छा भाई ये कैटेगरी के लिए एवरेज वैल्यू क्या है प्लस आपका एरर टर्म क्या है, दैट यूज टू टेल अस कि अच्छा आपकी वाई आई वैल्यू क्या है, राइट? सिमिलर चीज अगर हमें सैंपल के लिए करनी है तो आप क्या कर सकते हो, अब इसका एस्टिमेटर क्या है, इसका एस्टिमेटर क्या है, वाई आई हैट. तो आपने क्या किया, अच्छा जो भी आपकी वाई आई हैट वैल्यू थी, जो भी आपकी एवरेज वैल्यू थी, और अब क्या करना पड़ेगा, ये जो भी वैल्यू है अब इसमें क्या ऐड करें कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई आई आ जाए. तो अब इसमें आप क्या ऐड कर दोगे, देर इज अ टर्म विच यू ऐड विच इज कॉल्ड ई आई. ठीक है, सो व्हाट इज ई आई? ई आई को हम बोलते हैं रेसिड्यूअल टर्म. रेसिड्यूअल टर्म इज नॉट द एरर टर्म. रेसिड्यूअल टर्म मतलब आप वाई आई जो था उसमें इतना पार्ट तो आप एक्सप्लेन कर पाए, ये आपसे एक्सप्लेन करना रह गया. ठीक है, क्योंकि अगर रेसिडुअल 0 होता इसका मतलब क्या है, आपने परफेक्टली पूरी की पूरी चीज एक्सप्लेन कर दी. ठीक है, सो ई आई बेसिकली क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन
the actual y value and their estimated value from the sample regression. ठीक है, सो EI इज नथिंग बट एक्चुअल YI और आपने जो एस्टिमेट किया था वैल्यू यूजिंग द सैंपल डेटा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेसिडुअल टर्म. ठीक है, इसको थोड़ा सा ना डायग्रामेटिकली समझते हैं. इसका मतलब क्या है, व्हाट इज EI, व्हाट इज दिस EI, वेयर. मैम, क्या हम जो पॉपुलेशन के लिए हमने वाई आई निकाला था और जो सैंपल के लिए हमने वाई आई निकाला है, उन दोनों की नोटेशन सेम है. मतलब दोनों को हम वाई आई से डिनोट कर रहे हैं. ये एक्चुअली पॉइंट सेम है. मतलब बेसिकली अच्छा. देख, मतलब इट्स लाइक YI क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर बच्चा है, उसका मैथ स्कोर क्या है, दैट्स इट. सो ओके. दैट सेम, मतलब कोई वैल्यू अगर सैंपल में है तो इट इज बाउंड टू बी अवेलेबल इन द पॉपुलेशन वैल्यू, राइट. ओके. सो ये एग्जैक्टली नोटेशन विल बी एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं डायग्रामेटिकली. ठीक है, देखो अब हम लोग मान लो कि मान लो आपकी पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन जो था वो कुछ इस तरीके का है. मान लो उसकी जो लाइन थी, जो भी हमें ड्रॉ करना था, इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, दिस इज योर पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन. ठीक है, ये पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है. और मान लेते हैं फॉर अ मोमेंट जो भी हमारे पास सैंपल डेटा था वो हमें पता चल गया था, और उसको यूज करके कोई भी टेक्निक, जो हम आगे पढ़ेंगे क्या टेक्निक है, वो टेक्निक यूज करके हमने एक एस्टिमेट निकाल दिया कि भैया ऐसी जो है ये लाइन ना ऐसी. अब ये लाइन क्या थी हमें तो नहीं पता, बट जो भी हमारे पास सैंपल डेटा है उसके बेसिस पे हमने क्या सोचा या क्या निकाला, हमने सोचा कि शायद हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन का जो एस्टिमेट है वो समथिंग लाइक दिस होना चाहिए. सो मे बी वी सेड दैट इट शुड बी समथिंग लाइक दिस. इस तरीके का कुछ होना चाहिए. लेट मी ड्रॉ इट अगेन. इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, लेट्स से, राइट. आपके पास शायद डेटा वैसा आ गया होगा विच शोड यू कि शायद ज्यादा डिफरेंस है. ठीक है, दिस इज लेट्स से योर सैंपल रिग्रेशन लाइन. ये सब हम करेंगे कि सैंपल रिग्रेशन लाइन कैसे आएगी, कैसे डिटरमाइन करना है, एस्टिमेट क्या होगा, ये सब हम लोग देखेंगे. ठीक है, दैट वी विल बी डूइंग. बट सपोज फॉर अ मोमेंट लेट्स से आपके पास ये चीज आ गई, तो ये चीज जो है, ये सैंपल रिग्रेशन लाइन जो है, ये क्या बताएगी. ऑन द वाई एक्सिस यू हैव योर मैथ स्कोर, ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव व्हाट, इनकम. ठीक है, तो अब मान लो कि आपको फॉर अ पर्टिकुलर इनकम व्हाट इज द एवरेज मैथ स्कोर दैट इज देयर, वो आप सैंपल रिग्रेशन से बताओगे, सैंपल रिग्रेशन लाइन से बताओगे. इस पर्टिकुलर इनकम के लिए आपका एवरेज मैथ स्कोर क्या होना चाहिए, वो सैंपल रिग्रेशन लाइन आपको बताएगी. ये जो लाइन है ये असली लाइन है, बट हमें असली लाइन कभी दिखेगी ही नहीं. अभी हम थियोरी बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि अच्छा ये आपकी पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है, बट हमें रियल वर्ल्ड में कभी एक्सेस ही नहीं होगा इस लाइन का, राइट. तो मतलब हमारे पास तो यू नो वी विल ओनली सी दिस, वी विल ओनली हैव दिस, और इसके बेसिस पे हम लोग सारे एस्टिमेशन किया करेंगे. ठीक है, ये पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन तो हमें दिखाई ही नहीं देगी, राइट. So we will be making everything using this only and making all the claims using this only. ठीक है, but अब let's say कि अभी के लिए हमें मालूम है. ठीक है, तो आपके पास जो डेटा है, कोई भी एक डेटा आया आपके सैंपल में विच इज लाइक कि मान लो इनकम 5000 है और आपके जो बच्चे हैं उनका स्कोर जो है 550 है. ठीक है, लेट्स से दिस इज 500. ठीक है, मान लेते हैं, और ये जो है लेट्स से इनकम है 2000. ठीक है, ऑल राइट. तो अब जो है देखो, आपकी इनकम 5000 है यहाँ पे मान लो, और आपका स्कोर क्या है 550. ठीक है, तो मान लेते हैं कि 550 समवेयर हियर.
दिस इज 550 एंड दिस इज इनकम 5000. ठीक है, तो ये व्हाट विल दिस पॉइंट बी टेलिंग यू? ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन पे ये जो पॉइंट है, ये आपको क्या बता रहा होगा? व्हाट विल दिस पॉइंट बी टेलिंग यू? एंड व्हाट विल दिस पॉइंट बी टेलिंग यू? तो ये पॉइंट आपको क्या बताएगा कि फॉर द इनकम कैटेगरी ऑफ 5000 व्हाट इज द एवरेज मैथ स्कोर दैट यू हैव इन द पॉपुलेशन, राइट? एंड व्हाट विल दिस पॉइंट टेल यू कि अच्छा 5000 इनकम कैटेगरी के लिए व्हाट इज योर एस्टिमेशन फॉर एवरेज मैथ स्कोर, राइट? और इफ आई वांट यू टू रिप्रेजेंट कि एरर टर्म क्या होगी, दिस इज योर एक्चुअल वाई आई, दिस इज योर एक्चुअल एक्स आई कॉमा वाई आई. ठीक है, तो ये चीज क्या है? दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स आई. एंड ये चीज क्या है? दिस इज वाई आई हैट विच इज योर एस्टिमेट ऑफ दिस एवरेज वैल्यू. ठीक है, तो आप इतना तो एक्सप्लेन कर पाए, बट whatever was left for you to explain in the sample, आपकी जो एक्चुअल वाई आई वैल्यू थी और जो आपने एस्टिमेट किया, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वी आर सेइंग दैट इट इज रेसिडुअल, राइट? सो दिस डिफरेंस इज नथिंग बट ई आई. यस और नो? यस, आपकी एक्चुअल वैल्यू और जितना भी आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो यूजिंग द सैंपल डेटा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको आप क्या बोल रहे हो? रेसिडुअल, राइट? And if I ask you, can you please help me in representing UI, which is error term? So what will be our error term in this case? हम पूरा हो जाएगा ना ये? पूरा starting from here till this green line, right? So हमारा जो error term था वो क्या था? जो भी आपकी expected value है और जो भी आपकी actual value है, उन दोनों के बीच में जो difference है उसको हम लोग error term से represent कर रहे हैं. ठीक है, so this entire thing will be your error term. So this is just to show you that, don't get confused. Error term is a different thing and residual is a different thing. Residual means आप जितना भी mean value explain कर पा रहे हो using your data, वो, और जो आपकी actual value है. So actual value और whatever you are able to explain, उसके बीच का जो difference है उसको हम लोग बोलते हैं residual. नाम भी बोल रहा है residual, मतलब ये बच गया, अब इसको आप explain नहीं कर पाए. ठीक है, so that is like a counterpart of population regression line and population regression function जो हम लोग सैंपल के लिए यूज करते हैं. ठीक है, सो आपका स्टोकेस्टिक वर्जन में अगर लिखना चाहूं, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? वाई आई इज नथिंग बट B1 प्लस B2 XI प्लस EI. ये क्या है एक्चुअली? वाई आई हैट. ठीक है, so this is your stochastic sample regression function. Okay, is that fine, guys? Ma'am, can you please tell the meaning of stochastic again? So stochastic मतलब देखो, एक तो आप डिफाइन कर रहे थे कि एवरेज वैल्यू ऑफ वाई क्या होगी फॉर डिफरेंट डिफरेंट एक्स वैल्यूज. ठीक है, तो उसमें देर इज नो वेरिएशन. For this particular income, what is the average value? For this particular income, what is the average value? But stochastic मतलब आप हर एक पॉसिबल YI के लिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करो उसका एक एक्सप्रेशन दे रहे हो. स्टोकेस्टिक मतलब समथिंग विच इज चेंजिंग. ठीक है, एक पर्टिकुलर इनकम के लिए एवरेज वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज ओनली अ सिंगल वैल्यू. बट ये जो स्टोकेस्टिक वर्जन है, इट टेक्स केयर ऑफ, ये इस चीज को भी एक्सप्लेन करेगा, वो इस चीज को भी एक्सप्लेन करेगा, वो इस चीज को भी एक्सप्लेन करेगा, राइट? सो स्टोकेस्टिक मतलब समथिंग विच चेंजेस. ठीक है, so that version is like a way in which you can express any x and y point. मैम, जो यूआई है वो सेम एक्सआई के लिए डिफरेंट नहीं होना चाहिए? UI जो है सेम XI के लिए अलग अलग होगा. डिफरेंट? यस यस डेफिनेटली. ओके ओके. यस यस. सो ये जो I है इसका मतलब क्या है?
दिस इज माई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, इस तरीके से, ठीक है? Ma'am, can you please show the graph once? या दिस वन। सो बेसिकली मान लो कि भाई x1 जो है, x1 और y1, x2 और y2, x3 और y3। हो सकता है ये x1, x2 और x3 ये तीनों सेम ही हो, ये तीनों 5000 ही हो सकता है। Uh, तो इट्स लाइक, इट्स द मैम फर्स्ट। मैं ये पूछना चाह रही थी कि can I mark on the screen? या डेफिनेटली, गो अहेड। Okay, okay. अब ये जो हमारा पॉइंट है इस लाइन पे, ये वाला, ये हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ y है। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ y, या यस मैम। और फॉर ये वाले जो फॉर अ पॉइंट्स पर्टिकुलर है, x वैल्यू, यस। ये हमारी एक पर्टिकुलर y वैल्यू है। ये एक पर्टिकुलर y वैल्यू है जहां पे इनकम 5000 थी, यस मैम। तो राइट? मैम इन दोनों y वैल्यू के लिए ui डिफरेंट होगा ना? यस यस, यूआई जैसे जैसे आपकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, आपका एरर अलग अलग होता रहेगा। यस यस। ओके अगर ओके। आप एग्जैक्टली आपका पॉइंट मान लो, ऐसा कोई एक बच्चा है जिसका स्कोर उतना ही है जो एवरेज वैल्यू है, उसके लिए एरर की वैल्यू होगी 0। कोई बच्चा है जिसका स्कोर यहाँ पे आया, उसके लिए एरर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कोई बच्चा है जिसका स्कोर यहाँ पे, उसके लिए एरर की वैल्यू नेगेटिव होगी। सो द ओके एरर कैन एंड इट्स बाउंड टू चेंज विद एवरी सिंगल ऑब्जर्वेशन। यस। ओके मैम। ओके, ओके। all right, let me clear that up. Okay, guys, Dimple, Sanskriti, are you following? Yes, ma'am. All good? कोई डाउट? Yes, ma'am. चलो, ओके, ऑल राइट। सो तो हमारा मकसद जो है बहुत ही सिंपल सरल भाषा में ये है कि भाई मुझे ये जो लाइन है इसको एस्टिमेट करके, मतलब मेरा मकसद है कि प्लीज मेरे पास एक लाइन आ जाए कि जो एग्जैक्टली यही हो। मेरा मकसद तो यही है, बट बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस इट इज बाउंड टू हैपन कि हम थोड़ा इधर उधर ही एस्टिमेट करेंगे। सो वॉट एवर दैट एस्टिमेट इज, लेट्स सी। तो आपका मेन गोल क्या है? ये रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना यूजिंग द सैम्पल डेटा। अब ये कैसे एस्टिमेट करोगे? ये इक्वेशन आई कहाँ से, ये लाइन कहाँ से आई, ये B1 कैसे आएगा, ये B2 कैसे आएगा, ये सब हमें समझना है अब, ठीक है? सो ये सब, दिस इज ऑल दैट इज टर्म्ड इनटू पैरामीटर एस्टिमेशन। सो ये B1 B2 ये सब वैल्यूज क्या है? ये एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर्स थे जिनको हमें एस्टिमेट करना है। क्योंकि अगर आपको मैं ये B1 और ये B2 दे दूं, राइट, द मोमेंट आई गिव यू B1 एंड B2 एंड यू नो दैट दिस इज लीनियर, यू नो एवरीथिंग, राइट? यू कैन ड्रॉ द लाइन। जैसे ही मैं आपको इंटरसेप्ट दे दूं और जैसे ही मैं आपको स्लोप दे दूं, आपके पास पूरी की पूरी लाइन बन के तैयार हो गई, राइट? तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि B1 और B2 क्या होगा? ऐसा कैसे निकालू मैं B1 और B2 कि मैं पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन के सबसे नजदीक आ पाऊं, ठीक है? ये हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इन दिस इंटायर जर्नी वी आर ऑल्सो डिफाइनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। रेसिड्यूअल डिफाइन कर रहे हैं, स्टोकेस्टिक वर्जन क्या होगा? स्टोकेस्टिक वर्जन मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे आप फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई एक्सप्रेशन को लिखने की कोशिश करते हो, ठीक है? ओनली दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हेल्प्स यू टू फाइंड व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, but this is a broad expression जहां पे आप हर एक पॉसिबल y और xi के लिए रिलेशनशिप किस तरीके का होगा उसको फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है? ओके, सो ऑल राइट, आई थिंक guys, let's take a quick 10 minutes break, come back and then आज ही हम लोग estimation पे बात करना शुरू कर देंगे। We will start talking about how to estimate it. So there will be a method of ordinary least squares. So what is that method? किस तरीके से B1 B2 निकाले? The moment we start doing that, it will start making more and more sense to you. Okay, so it's 5:07 right now. Let's come back at 5:17 and then we will take it from there. Okay, all right.
Okay. So we saw what is sample regression function, we saw what is our goal in this entire process. हमारा goal पूरा का पूरा क्या है? अगर मैं बहुत ही simple सी language में अगर लिखना चाहूँ, what is our goal? Once again, so हमारा goal क्या है कि भाई मेरे पास एक population regression function है. What is my objective? My objective is that I have a population regression function which is yi equals to b1 plus b2 xi plus ui. This is my population regression function. I have to estimate this population regression function based on the sample data, a single sample, rather than having the entire population to me. सो एक सैंपल का डेटा यूज करके मुझे ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को एस्टिमेट करना है. ठीक है. ऑल्सो गाइज काइंडली नोट कि you never get to see what this b1 is, you never get to see what this b2 is, you never get to see what this error term is. So we never get to see कि ये values क्या हैं, क्योंकि हमारे पास कभी भी population का data available नहीं होता. So we do not observe b1, b2 और ui. हम सिर्फ इन तीनों नंबर्स जो हैं इनके एस्टिमेट्स निकालते हैं यूजिंग द सिंगल सैंपल दैट वी हैव. तो हमारा b1 इसका एस्टिमेट होता है, हमारा b2 इसका एस्टिमेट होता है, और एक तरीके से ब्रॉडली अगर समझना चाहो तो रेसिडुअल एक तरीके से इसका एस्टिमेट हो सकता है. ठीक है. All right. So once you have a specific sample, you will be able to figure out what is B1, what is B2, and what is the residual value that you have. ठीक है. Also, अब हमारा मकसद क्या है कि can I figure out a method? Can I find a way? क्या मैं एक ऐसा कोई तरीका फिगर आउट कर सकती हूँ जिसकी वजह से मैं B1 और B2 की वैल्यू निकाल पाऊँ सच दैट मैं मेरा जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है उसके जितने नजदीक पहुंच सकूं. ये जो मेरी पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन थी, मैं इसके जितने नजदीक पहुंच सकूं उसके उतने नजदीक पहुंच जाऊं. राइट. सो आई वांट टू बी एज क्लोज टू माय एक्चुअल वैल्यू एज पॉसिबल, ताकि मैं मतलब एक तरीके से बेस्ट एस्टिमेट दे पाऊं. राइट. दैट इज माय ऑब्जेक्टिव. सो कैन आई फाइंड अ वे टू फाइंड b1 एंड b2? क्या मैं कोई एक ऐसा तरीका, कोई मेथड, कोई प्रोसीजर है कि मैं ये b1 b2 को एस्टिमेट कर पाऊं सच दैट ये जो भी अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं, दिस अप्रोक्सीमेशन is as close to the population values as possible. तो इसका मतलब क्या है? आप क्या चाहते हो कि अच्छा ये जो b1 है ये कैपिटल B1 के जितने नजदीक हो जाए उतना होना चाहिए, ये जो B2 है ये कैपिटल B2 के जितने नजदीक हो सके उतना होना चाहिए. राइट. सो दैट इज बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव, सिंपल सरल शब्दों में. ठीक है. अब ये एस्टिमेट कर सकते हैं या नहीं, क्या तरीका है, उसको करने से पहले एक छोटा सा डाइवर्जन ले लेते हैं. दो टर्म्स हैं विच इज लीनियरिटी एंड टू वेरिएबल मल्टीपल वेरिएबल. एक बारी बस उसको समझ लेते हैं एंड देन वी विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द एस्टिमेशन पार्ट. ठीक है. दिस इज बेसिकली आवर एंटायर ऑब्जेक्टिव. B1 और B2 क्या होना चाहिए ताकि मैं पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन जो है उसको बेस्ट वे में एस्टिमेट कर पाऊं. ये मेरा पूरा का पूरा आइडिया है टुवर्ड्स रिग्रेशन. ठीक है. दैट इज व्हाट आई वांट टू डू. ठीक है. इसमें कोई भी डाउट, किसी को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो, यू वांट मी टू रिपीट, आई कैन डू दैट. सो या, ऑल गुड. मैम, जब हमें पता ही नहीं है कि कैपिटल B1 और B2 क्या है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि स्मॉल B1 और B2 जो है वो क्लोज है पॉपुलेशन वैल्यू के या नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन. सो अभी जब हम लोग जो तरीका हमारा है
उसको जब थोड़ा सा समझेंगे देन इट विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस टू यू, थोड़ा सा नेचुरल फील होगा. अभी बहुत डाइसी है कि ये क्या हो रहा है, बट we'll do that, we'll understand that. But good question at good point. Yes. Any other question? I will take that question. Yes. Let's move ahead. चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है. ऑल राइट. सो जब हम बोल रहे हैं कि हमें लीनियर रिग्रेशन के बारे में डिस्कशन करना है, हमने क्या बोला? वी वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडियाज ऑफ लीनियर रिग्रेशन. अब ये जो टर्म है लीनियर, इसका क्या मतलब है? अब ये लीनियर का मतलब क्या है कि क्या मतलब हमें वेरिएबल्स लीनियर फॉर्म में लेने हैं? क्या हम स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं कर सकते, या वाई स्क्वायर नहीं हो सकता, या लॉग वाई नहीं हो सकता, या लॉग एक्स नहीं हो सकता, या फिर मतलब ये लीनियर का मतलब क्या है? ठीक है. सो बेसिकली दो चीजें हैं. अब आपका जो भी पूरा एक्सप्रेशन है उसमें लीनियर क्या चीज है वो दो जगह आती है. देखो, देयर आर टू थिंग्स. फर्स्ट इज पैरामीटर्स and second is variables. Do you guys understand the difference between these two? So let's say, I have this. So let's say yi equals to b1 plus b2 xi. Suppose, chalo isko chhod do. Let's say I write this. Suppose this is my expression. ठीक है. What is a parameter here and what is a variable here? Can you help me out with that? पैरामीटर क्या है और वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज समथिंग विच कीप्स चेंजिंग, और पैरामीटर मतलब, पैरामीटर का यूजुअली यूज कहाँ होता है? जो एक पॉपुलेशन रिलेटेड वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती, जैसे पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, ये क्या है? पैरामीटर्स है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे तो एन, नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो आपका एक पैरामीटर होता था. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वो आपका एक पैरामीटर होता था. ऐसे यहाँ पे पैरामीटर्स और वेरिएबल्स क्या है? Parameter is the expected value of y given xi. सो पैरामीटर मतलब ऐसी वैल्यू जो पॉपुलेशन, फॉर अ गिवन पॉपुलेशन इट रिमेन्स द सेम. ये एक कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का. B1 and B2 are parameters. B1 and B2 are my parameters, right? क्योंकि for a given population it stays as it is, right? कि B1 और B2 अगर आपने बता दिया तो एक तरीके से this is so much information to me कि मैं एक population regression line बना सकती हूँ, right? जैसे B1 B2 change हो गए मतलब population regression line change हो गई, right? So this is something which is very specific to population, जो population को डिटरमाइन करता है. पॉपुलेशन किस तरीके की, उसके बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील करता है, राइट? वो आपके पैरामीटर्स होते हैं. और वेरिएबल क्या होता है? ऐसे सो द थिंग्स व्हिच कीप चेंजिंग, राइट? सो एक्स इनकम है, दैट कैन कीप चेंजिंग. वाई क्या है आपका? स्कोर, मैथ स्कोर, दैट कैन ऑल्सो कीप चेंजिंग. सो व्हाट आर योर वेरिएबल्स हियर? एक्स एंड वाई, राइट? दीज आर योर वेरिएबल्स. एंड पैरामीटर्स क्या है? B1 एंड B2. तो आपका हमेशा मकसद क्या होता है? पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना. आपका कभी भी मकसद ये नहीं है कि मैं वेरिएबल्स को एस्टिमेट कर दूं. वेरिएबल्स पे तो आप डेटा खुद जाके कलेक्ट करते हो, ठीक है? सो यू ऑलवेज कलेक्ट डेटा ऑन वेरिएबल्स एंड यू ऑलवेज ट्राई टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स, राइट? पैरामीटर एस्टिमेशन, रिमेंबर वी यूज दैट टर्म, ठीक है? तो आपको क्या करना है? वेरिएबल्स पे हमेशा डेटा आप कलेक्ट करते हो और आप पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हो, ठीक है? सो जैसे पॉपुलेशन वेरिएंस, पूरे एंटायर आपका सेम 3 का जो स्टेटिस्टिक्स था, आप वहां पे क्या करते थे? पॉपुलेशन वेरिएंस पता है, पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं पता है, तब क्या एस्टिमेट करें, क्या यूज करें, वो सब पूरा पैरामीटर एस्टिमेशन था, ठीक है? ऑल राइट. सो इज दैट फाइन? ठीक है, ऑल गुड. चलो, तो अब ये जो लीनियर रिग्रेशन बोल रहे हैं, अब क्या ये बोल रहे हैं कि वी आर लीनियर इन पैरामीटर्स, पैरामीटर्स में लीनियर होना है, या फिर ये बोल रहे हैं कि वेरिएबल्स में लीनियर होना है, राइट? सो आर दे सेइंग दैट वी शुड बी लीनियर इन पैरामीटर्स और लीनियर इन वेरिएबल्स? सो देयर कुड बी 2 पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट इज
लीनियर इन वेरिएबल्स, linearity in variables, ठीक है। सो लीनियरिटी इन वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा कि भाई जो भी आपका ये कंडीशनल मीन जो है, इट्स अ लीनियर फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कि ये जो आपका कंडीशनल मीन है ये लीनियर वे में कनेक्टेड होना चाहिए आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, राइट। सो लीनियरिटी इन वेरिएबल्स का ये मतलब होगा कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो कंडीशनल मीन है ये लीनियरली रिलेटेड है आपस में, ठीक है। यहाँ पे b1 स्क्वायर ये सब कुछ भी होगा, यहाँ पे log b1 ये सब चलेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि ऑल दैट दे वांट इज ये x और ये जो कंडीशनल मीन है दे शुड बी लीनियरली रिलेटेड, ठीक है। इसका लीनियरिटी इन वेरिएबल्स का मतलब ये क्या होगा वो आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। सो लीनियरिटी इन वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा कि द कंडीशनल मीन value of the dependent variable which is y that is a linear function of the independent variables. हो सकता है एक वेरिएबल हो सकता है एक से ज्यादा वेरिएबल हो, राइट। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सो दे आर बेसिकली एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस, दिस इज लीनियर इन डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कंडीशनल मीन है वो और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दे आर लीनियरली रिलेटेड, राइट। सो इस तरीके का अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो आप उसको क्या बोलते हो, दैट दिस इज लीनियर इन वेरिएबल्स। सो कैन यू टेल मी कि ये जो अगर कंडीशनल मीन है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, is this linear or not? Is this linear in variables? ये आपका जो कंडीशन, इट इज और इट इज नॉट? It is not. इट इज नॉट। व्हाई? बिकॉज x1 की पावर 2 है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपका कंडीशनल मीन है उनका लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, उनका क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो लीनियर इन वेरिएबल्स का मतलब क्या है, ये और एक्स आई दे शुड बी लीनियर फंक्शन, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब दूसरा जो टर्म है उसका मीनिंग क्या हो सकता है कि लीनियर इन पैरामीटर्स हो। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका कंडीशनल मीन है ना, कंडीशनल मीन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल that is a linear function of the parameters। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये चाहते हैं कि जो भी आपका कंडीशनल मीन है, ये जो कंडीशनल मीन है और जो भी आपके पैरामीटर्स हैं वो लीनियरली रिलेटेड हो। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ लीनियर इन पैरामीटर्स एंड लीनियर इन वेरिएबल्स, राइट। सो दे वांट कि ये जो कंडीशनल मीन है और जो आपके पैरामीटर्स हैं ये लीनियरली रिलेटेड हो आपस में, ठीक है। सो अब देखो, कैन यू टेल मी, सो लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट दिस, is this linear in parameters or not? No. No, because why? क्योंकि मेरे जो पैरामीटर्स हैं they are not a linear function. So basically my conditional mean is not a linear function of the parameters that I have. There is a power 2 that I have, right? So जब भी हम लोग लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो आप लीनियर इन पैरामीटर्स की बात कर रहे हो या आप लीनियर इन वेरिएबल्स की बात कर रहे हो। सो व्हेनेवर यू हियर द टर्म लीनियर रिग्रेशन, जो
लीनियरिटी की बात हम कर रहे हैं, दैट इज लीनियर इन पैरामीटर्स, कि आप हमेशा लीनियर इन पैरामीटर्स के बारे में बात करोगे, ठीक है। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट लीनियर इन वेरिएबल्स, ठीक है। इसीलिए जब भी हम पूरा डिस्कशन कुछ भी आगे जाके पढ़ेंगे, you will always see, you know, like these two parameters being in a linear form, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर हो, क्यूब हो, log हो, e पावर हो, कुछ भी हो चलेगा, because we are not talking about linear in variables, we are talking about linear in parameters. So from now on, whenever I say linear or you read linear in your book, that means they are talking about linear in parameters, ठीक है। So you will always see b1 and b2 coming up. You will not see log b1, you know, you will not see b2 square, something like that. You will not see all of that. So यहाँ पे जो हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे पूरे कोर्स, थ्रू द एंटायर कोर्स, दैट विल बी लीनियर इन पैरामीटर्स, ठीक है। सो अब इसको, यू नो, वी विल नॉट कीप रिपीटिंग दैट दिस इज लीनियर इन पैरामीटर्स, लीनियर इन पैरामीटर्स। लीनियर का मतलब क्या हो जाएगा कि हाँ, हम लीनियर इन पैरामीटर्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। सो लीनियर इन वेरिएबल्स भी हो सकता है, लीनियर इन पैरामीटर्स भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो भी हम बातें करेंगे in the entire course we will be talking about linear in parameters, ठीक है। So this x can take various forms, whatever form it wants, but you know, the parameters will be linear in nature, ठीक है। Is that fine guys? All good? ठीक है। एंड मैम जो B1 एंड B2 है, दीज आर द कांस्टेंट ही रहेंगे वो। यस, जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं वो एक फिक्स वैल्यू ही लेते हैं, यस। ये कांस्टेंट होंगे, बट ये कैसे कांस्टेंट है हमें नहीं पता, और ना ही हमें कभी पता होगा, ठीक है। इज दैट फाइन? ऑल गुड? यस मैम। ठीक है, चलो जी। तो ये तो लीनियर का मतलब समझ लिया। अब जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक आइडियाज ऑफ लीनियर रिग्रेशन इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल और मल्टीपल वेरिएबल में किस तरीके से चीजें होंगी, एक बारी बस उसको और देख लेते हैं। सो टू वेरिएबल केस क्या होगा, हमने टू वेरिएबल देखा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उसको हम क्या बोल रहे हैं, टू वेरिएबल केस। जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही होगा, एक ऐसा वेरिएबल जिसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो या जिसमें वेरिएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हम मैथ स्कोर को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ इज दैट रिलेटेड टू फैमिली इनकम। व्हाट इफ यू नो यू हैव मोर देन वन वेरिएबल्स, यू कैन हैव फैमिली इनकम, family education, all of these variables. So when you have more than one independent variable, that is a multiple variable case, ठीक है। So multiple two variable case and multiple, उसको हम लोग multiple linear regression बोलते हैं। So basically multiple linear regression में क्या होगा, you will have more than one independent variables, ठीक है। independent variables your x variables, ठीक है। So उसमें क्या होगा, यू विल हैव अ रिग्रेशन जहाँ पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज बीइंग यूज्ड टू एक्सप्लेन योर डिपेंडेंट वेरिएबल। सो उसको अगर आप लिखना चाहो, उसको आप कैसे लिख सकते हो, जैसे लेट्स से दिस मैथ स्कोर विल बी लेट्स से b1 प्लस b2, आपका एक वेरिएबल हो गया x2i, प्लस b3 एक वेरिएबल हो गया x3i, प्लस b4 एक वेरिएबल हो गया x4i, राइट। प्लस there will be a error term that we will add, क्योंकि सिर्फ तीन वेरिएबल से सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगी। अगेन द सेम थिंग रिमेन्स कि थोड़ा बहुत एरर हो सकता है मेजरमेंट में, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, ह्यूमन रैंडमनेस भी है। बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट वी कीप एडिंग द एरर टर्म दैट वी हैव, ठीक है। ये आपका मान लो, यू नो मान लो दिस इज योर फैमिली इनकम, ठीक है। ये क्या हो सकता है, लेट्स से दिस इज पेरेंट्स एजुकेशन, ठीक है। दिस कुड बी योर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। सिर्फ हम दो वेरिएबल्स लेके नहीं कर सकते, बाकी सारे फैक्टर्स तो एरर में नहीं आ जाएंगे जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। हाँ, आ सकते हैं, बट आप अब ये भी हम बात करेंगे कि अगर आपके मेन वेरिएबल्स जो आपको पता है कि इम्पैक्ट कर रहे हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को, अगर वो एरर टर्म में रह जाएं तो क्या दिक्कत होती है। ये सब थियरी हम लोग पढ़ेंगे, बट हाँ
2 वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हो, मोर देन 2 वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। ओके ये सब हम लोग सो लाइक दिस इज वेयर वी विल बी बिल्डिंग अप कि अच्छा क्यों वेरिएबल्स ऐड करना जरूरी है, या क्यों ज्यादा वेरिएबल ऐड कर दिए तो क्या दिक्कत है, क्योंकि इस लॉजिक से क्या रहेगा कि लोग बोलेंगे कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर आप अपने मॉडल की सिंप्लिसिटी को खराब कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस होंगे दैट विल डिटरमाइन कि कितने वेरिएबल ऐड करें या कौन सा वेरिएबल ऐड करें, ये सब, ठीक है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दैट, but like just to show you multiple linear regression jab hoga, so you know instead of one independent variable you will have multiple independent variables, that's the only difference that you have, ठीक है। चलो जी, तो अब हम हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं, विच इज हमारा ऑब्जेक्टिव, अगेन रिमाइंडिंग अस अगेन कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि क्या कोई B1 और B2 ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं सच दैट कि हमारा जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है उसके हम क्लोजेस्ट आ पाए, ठीक है। सो लेट्स सी, सो आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज estimation of parameters. What are my parameters? Capital B1 and capital B2. I want to estimate those parameters. ठीक है? And we will be talking about one method to estimate the parameters, and the name of that method is the method of ordinary least squares. अभी मैम yeah, एक डाउट था, आई डोंट नो इफ इट्स रिलेटेड टू दिस और no नॉट। yes, मैम वो जो आपने अपना पेपर शेयर करा था उसमें जो आपने एक पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल लिखा था, उसमें आपने मल्टीपल वेरिएबल्स यूज करे थे। हाँ तो उसमें आपने एक जगह लिखा हुआ था सिग्मा बीटा 4i, मतलब बिफोर आपने बी से पहले आपने सिग्मा यूज करा हुआ है, तो वो सिग्मा क्यों यूज करा है? सिग्मा मतलब सिग्मा, हम समेशन समेशन अच्छा समेशन, यस ओके सो ओके ठीक है, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू आंसर दैट, बट सिग्मा मतलब कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इसी तरीके के जो मैंने ऐड किए हुए हैं। ओके सो जैसे मान लो कि यू नो एक तरीके से मान लो इस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि अच्छा बच्चे के मैथ्स में कितने स्कोर आ रहे हैं, दैट कुड बी डिपेंडेंट ऑन वेदर ही इज अटेंडिंग हिज क्लासेस और नॉट, राइट। सो एक वेरिएबल हमने बना दिया कि उसने अपना पहला सब्जेक्ट की क्लास अटेंड की नहीं, दूसरे सब्जेक्ट की क्लास अटेंड की नहीं, तीसरे की नहीं, चौथे की नहीं, वो चारों एक ही तरीके के वेरिएबल्स हो गए, राइट। और जिसका आंसर क्या है कि येस और नो, अटेंड किया या नहीं किया, राइट। सो अगर बहुत बट सारे अगर सबका आंसर डिफरेंट है, लाइक मैथ्स की क्लास अटेंड करी उसका आंसर है यस, इंग्लिश की करी उसका आंसर है नो, yes, तो हम उसको अच्छा तो वो ऐड हो जाए। सो बेसिकली मतलब इसको अगर मैं चाहूं तो इस इक्वेशन को भी वैसे लिख सकती हूँ, राइट। अब जैसे देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, वाई आई प्लस B1 प्लस BI x J, okay, actually you know what, let's do this, BJ x JI, राइट। और इसको मैं समेशन J गोइंग फ्रॉम 2 to 4 प्लस UI ऐसे लिख सकती हूँ कि आप J की अलग अलग वैल्यूज लेते रहो और फिर ये एक समेशन आ गया। समेशन मतलब यू जस्ट एडिंग थिंग्स, सो रादर देन राइटिंग B2 x2 B3 x3 B4 x4, अब मान लो 10 वेरिएबल होते तो मैं बार बार 10 चीजें तो नहीं लिखूंगी ना, मेरी तो Yes. इक्वेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उसको कॉम्पैक्ट तरीके से लिखने का मतलब तरीका है ये, ठीक है। ओके कि यहाँ पे मैम एक और चीज थी कि आपने एंड में जहाँ पे पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल में एरर आता है, जहाँ पे यूआई जहाँ लिखते हैं वहाँ पे आपने ई वाला कुछ लिखा हुआ है, शायद उसे एप्सिलॉन बोलते हैं, तो हाँ वो क्या है आपने? वो सब हम बाद में करेंगे। ओके तो वो डिफरेंट चीज हो गई, सेम चीज नहीं है जो अभी हम कर रहे हैं। गिव इट सम टाइम, ओके सम टाइम, अभी इट्स टू अर्ली, ठीक है। ओके चलो ओके, कमिंग बैक टू हमारा मेन मुद्दा विच इज एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। अब एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, उसमें से एक तरीका क्या है
वो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं. एंड द नेम ऑफ दैट तरीका इज द मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स. ठीक है, ये आपको एक तरीके से ना एक आइडिया देगा कि अच्छा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा था कि हमने तो B1 और B2 देखा ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसके सबसे नजदीक हैं. सो व्हेन यू आर इन सच अ सिचुएशन यू ट्राई टू इंट्यूटिवली गो अबाउट इट. जैसे हमने एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर पढ़ा था कि अच्छा, आपको एक सैंपल मिला है तो पैरामीटर वैल्यू किस तरीके से एस्टिमेट करो कि जो सैंपल आपको दिखा है वो सैंपल आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कब होगी, वो पैरामीटर की वैल्यू लेके आओ. क्यों? द वेरी फैक्ट दैट यू हैव सीन दैट सैंपल इन फ्रंट ऑफ योर आईज, दैट मीन्स ये सैंपल आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, इसीलिए आपको ये सैंपल दिखाई दिया. वो एक फिलॉसफी है, ये एक आइडिया है टू एस्टिमेट दिस. इसी तरीके से ये जो मेथड है, द मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, इसकी भी एक अपनी फिलॉसफी है जो अपनी रीजनिंग देता है कि क्यों ये तरीका it makes sense. So when you will go through it, you will also understand, it start to make sense कि हाँ ऐसे ही शायद it makes sense. So statistics में unknown चीजें बहुत सारी हैं. unknown से the best possible guess, the best possible thing that you could do, that is something would be interesting to see. So we will use that idea itself. चलो, तो अब PRF कैसे एस्टिमेट करना है, किस तरीके से फाइंड आउट करें कि जो एस्टिमेटेड PRF है, जो भी आपने एस्टिमेट किया है, वो एक अच्छा गुड एस्टिमेट है कि नहीं, जो कि हमारा क्वेश्चन था. सो बेसिकली हमारे दिमाग में क्या रहता है कि पहली बात तो PRF विच इज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, उसको एस्टिमेट ही कैसे करें, हाउ टू एस्टिमेट. एंड अगर भाई एस्टिमेट कर भी लिया, ठीक है, सो जो एस्टिमेटेड PRF है, इज दैट अ गुड एस्टिमेट, अच्छा एस्टिमेट है, या आपने बहुत ही ब्लंडर कर दिया है कि पता नहीं कुछ भी मन मर्जी की वैल्यूज लिख ली. ठीक है, सो इज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, इज दैट अ गुड एस्टिमेट, is that a good estimate of the true population regression function? ठीक है, ये दो सवाल हमारे दिमाग में आते हैं. पहली बात तो एस्टिमेट कैसे करें, और जो एस्टिमेट हो गया हमें तो नहीं पता कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या है, तो इज दैट अ गुड एस्टिमेट. ये दोनों चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं. ठीक है, सो हम क्या करते हैं, वो जो मेथड है, द मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, वो क्या बोलता है उसको थोड़ा सा समझते हैं, और उससे थोड़ा सा हमें आइडिया लगेगा कि अच्छा ऐसे एस्टिमेट किया जा सकता है, and whether it makes intuitive sense or not. ठीक है, there are other methods to estimate also, but that is the most simple one and most intuitive one, so we will start with that. और जो हमारा पूरा कोर्स है उसमें मेजरली हम यही डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो, तो what is that method? What is the idea of that method? The method of ordinary least squares. So ये मेथड जो है ये क्या बोलता है, सबसे पहले इसकी फिलॉसफी समझेंगे. मेथड की फिलॉसफी क्या है, किसी भी पॉइंट पे किसी को कुछ भी ना समझ में आए, यू कैन जस्ट टाइप इन द चैट एंड लेट मी नो इफ यू आर फेसिंग एनी ट्रबल्स. ठीक है, तो ये मेथड क्या बोलता है. तो पहले तो ये मेथड किस आइडिया पे बेस्ड है, तो ये जो मेथड है वो देखो, लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल जो है वो क्या बोलता है. तो देखो, सबसे पहले तो हमारा काम क्या है वो देखते हैं. हमें क्या करना है, PRF को एस्टिमेट करना है फ्रॉम सैंपल रिग्रेशन फंक्शन. आपका काम क्या है, आप क्या चाहते हो कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को एस्टिमेट किया जाए यूजिंग व्हाटएवर सैंपल रिग्रेशन फंक्शन दैट यू हैव फिगर्ड आउट, राइट. सो बेसिकली आपका जो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है वो क्या होता है, yi b1 plus b2 xi plus ei, and this ei is actually your residual term. ठीक है, तो ei एक्चुअली क्या है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू ऑफ y क्या है, राइट.
माइनस जो भी आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू, जो भी आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू वाई आई। प्रिडिक्टेड वाई आई मतलब जो भी आपकी एवरेज वैल्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ब्रैकेट, आप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्स आई कैटेगरी, उससे आपका एवरेज वैल्यू का एक्सपेक्टेशन क्या था। ठीक है, तो जो भी आपने प्रिडिक्ट किया था आपकी वाई आई वैल्यू होनी चाहिए, और जो आपकी एक्चुअल थी, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग रेसिडुअल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब आपकी एक्चुअल वाई आई वैल्यू क्या है, वाई आई माइनस आपने जो प्रिडिक्ट किया था वो क्या था, वाई आई हैट। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, वाई आई इज नथिंग बट b1 माइनस b2 xi। तो रेसिडुअल सिंपली एक्चुअल वैल्यूज और प्रिडिक्टेड वैल्यूज ऑफ, या फिर एवरेज वैल्यू का जो भी आपका प्रिडिक्शन था उस पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब देखो आप क्या चाहते हो कि आप पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के सबसे नजदीक जा पाओ, राइट? ये आपकी रेसिडुअल है। ठीक है, एज समवन हु इज डूइंग रिसर्च, उसका मकसद क्या होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि जो मैं प्रिडिक्ट करूं मेरी वाई आई वैल्यू, राइट, जो वैल्यू मैं वाई आई की प्रिडिक्ट कर रही हूँ बेस्ड ऑन नोइंग कि मेरी एक्स आई वैल्यू क्या है, और जो मेरी एक्चुअल वाई आई वैल्यूज हैं, आई वांट कि उन दोनों के बीच में कम से कम डिफरेंस हो, राइट? सो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं जितना नजदीक आ पाऊं मेरी एक्चुअल वाई आई वैल्यू के, उतना मेरे लिए अच्छा है। उतना मेरे को पता चलेगा कि हाँ, मैंने करेक्ट तरीके से प्रिडिक्शन किया है, या जो मेरी रिग्रेशन लाइन है वो करेक्ट है, राइट? सो बेसिकली मान लो कि मेरा एक्चुअल मार्क्स है 550 और मेरी इनकम है 5000। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे एक्यूरेटली बता दिया जाए, जो भी मेरी इक्वेशन हो वो मेरे को एक्यूरेटली अच्छे से जितना क्लोज आ पाए मेरे एक्चुअल स्कोर के, उतना मेरे लिए अच्छा है। सो जो भी मेरी इक्वेशन होगी, लेट्स से b1 प्लस b2 xi, वहां पे जब मैं 5000 पुट करूं तो मेरा जो नंबर निकल के आए वो 550 के बहुत क्लोज होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट, एंड आई वांट दिस फॉर एवरी सिंगल ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव, राइट? डज दैट मेक सेंस? डज दैट सीम लॉजिकल कि हम यही चाहेंगे? हु वुड वांट कि यू नो कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है और जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो उनमें जमीन आसमान का फर्क हो, राइट? यू वुड नॉट वांट दैट टू हैपन। डज दैट मेक सेंस? आप क्या चाहते हो कि ये रेसिडुअल है, जिस चीज को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो वो छोटी से छोटी हो, दैट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। यस और नो? राइट? Yes, ma'am. ठीक है, डज दैट सीम लॉजिकल? एवरीबडी, आर वी फॉलोइंग? या ओके, ऑलराइट। सो ये जो पीआरएफ है, इसको एस्टिमेट करने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट वे टू एस्टिमेट पीआरएफ मतलब b1 और b2 को एस्टिमेट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपने b1 और b2, आपको दो चीजें चूज करनी है, b1 और b2। सो आप ये जो b1 और b2 है इनको ऐसे चूज करो, यू चूज देम सच दैट कि ये जो आपके रेसिडुअल्स है ना, जो डिफरेंस बिटवीन योर एक्चुअल वाई आई वैल्यू और वो वाई आई वैल्यू जो आपकी आ रही है यूजिंग द सैम्पल डेटा, दैट इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। सो बेसिकली बेस्ट तरीका क्या है, आपको क्या करना है, b1 और b2 ये दोनों इसके एस्टिमेटर्स हैं, इसके एस्टिमेट्स हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, या बेस्ट तरीका बेसिकली पीआरएफ को रिप्रेजेंट करने का क्या होगा कि b1 और b2 ऐसे हों कि ये जो EI है, व्हाट इज EI? रेसिडुअल, आपकी एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू उनके बीच का जो डिफरेंस है वो जितना छोटा होगा उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, उतना ही आप एक्यूरेटली बता पा रहे हो फॉर एवरी सिंगल एक्सआई वैल्यू कि बच्चे का स्कोर कितना होना चाहिए, राइट? सो दैट मीन्स यू आर कमिंग क्लोजर टू द एक्चुअल थिंग, राइट? सो यू वांट लीस्ट डाइवर्जन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यूज, राइट? एक तरीके से दिस इज अ रीजनेबल मेट्रिक टू डिसाइड
कि आप कितना नजदीक आ रहे हो अपने एक्चुअल वैल्यूज के, राइट? डज दैट मेक सेंस? सो ये जो लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल बोलता है वो क्या कह रहा है कि B1 और B2, तो आइडिया, अभी तो हम आइडिया डिस्कस कर रहे हैं कि B1 और B2 ये जो एस्टिमेट्स हम लोग करना चाह रहे हैं, इनको ऐसे चूज करो, B1 B2 की ऐसी वैल्यू बता दो मेरे को कि जब मैं मेरे एक्चुअल YI और मेरे जो प्रिडिक्टेड YI है उनके बीच का डिफरेंस देखूं, तो ये मुझे छोटे से छोटा, जितना छोटा पॉसिबल हो मेरे लिए, वो लेके आ जाओ, ठीक है? दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव, व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज, ठीक है? अब देखो, अब अगेन अब ये जो YI माइनस YI हैट है, दिस इज योर रेसिडुअल। अब आपके पास सैंपल में बहुत सारा डेटा होगा, मान लो 10 ऑब्जर्वेशन है, तो आपके पास 10 रेसिडुअल वैल्यूज होंगी, राइट? तो आप क्या करोगे भाई, मान लो ये पहला रेसिडुअल है, फिर दूसरा रेसिडुअल भी होगा। असली वैल्यू आपको पता है क्योंकि वो आपको सैंपल डेटा से मिल गया है, आपने B1 B2 की वैल्यू चूज कर ली कोई भी अपनी मर्जी से, उससे आपके पास एक Y1 हैट की वैल्यू आ जाएगी, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट आप जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं आप सबके लिए अपनी रेसिडुअल वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है? आपका मकसद क्या है, आपके रेसिडुअल कम से कम हो, राइट? सो इफ यू जस्ट सम ऑल ऑफ दीज रेसिडुअल, कुछ रेसिडुअल पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको एक्चुअल कितना डिविएशन था उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हो नहीं पाएगी। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज द नेक्स्ट रिजॉर्ट दैट वी टेक, ये हमने कॉन्सेप्ट पहले भी किया हुआ है, डू यू रिमेम्बर दैट? स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, या वेरिएंस को? हम सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन को, मतलब बेसिकली वेरिएंस अगर डिटरमाइन करनी है कि आप मीन वैल्यू से कितना दूर हो, सो आर यू काइंड ऑफ रिमेम्बरिंग दैट? क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि हम सिर्फ डिविएशन नहीं देखते, हम स्क्वायर्ड डिविएशंस देखते हैं, राइट? एंड हम स्क्वायर डिविएशंस क्यों देखते हैं? क्योंकि आप सिंपल लीनियर डिविएशंस को बस देखोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिविएशंस भी हैं नेगेटिव डिविएशंस भी हैं, तो आपको एक क्लियर आइडिया नहीं मिल पाएगा। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं कि कुछ रेसिडुअल पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, तो टोटल डिविएशन या रेसिडुअल्स कितने बच गए उनका एक अच्छा एस्टिमेट नहीं आ पाएगा इफ यू सिंपली जस्ट ऐड दीज, ठीक है? सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी स्क्वायर दीज रेसिडुअल्स, ठीक है? हम लोग ये रेसिडुअल वैल्यूज को स्क्वायर कर देते हैं, और ऐसे जितने भी, मान लो आपके पास n सैंपल का n ऑब्जर्वेशंस का सैंपल था, तो आपने ऐसे n सैंपल्स जो है अपने पास ले लिए, ठीक है? मैम जहाँ पे आपने लिखा है E2 स्क्वायर इक्वल्स टू Y2 माइनस, वहाँ पे Y2 हैट होना चाहिए। Y2 यस यस, ठीक है? तो आप क्या चाहते हो, व्हेन यू ऐड देम यू विल लाइक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट नहीं होगा, तो आप क्या चाहते हो, आप ये देखोगे कि अच्छा स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स किस वैल्यू ऑफ B1 और किस वैल्यू ऑफ B2 के लिए सबसे छोटे हैं, ठीक है? ये जो है ये हमारा इंटायर प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है कि B1 और B2 ऐसे चूज करो कि सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स जो है वो मिनिमम से मिनिमम आ जाए, राइट? क्योंकि वो जितना छोटा होगा हम उतने ही हमारी एक्चुअल वैल्यूज के नजदीक होंगे, राइट? डज दैट मेक सेंस? सो जस्ट टू राइट ऑल ऑफ दिस इन वर्ड्स, हमारा जो मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स है, ठीक है, वो क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, B1 B2 फाइंड आउट करना, तो ये मेथड क्या बोल रहा है, ठीक है आप B1 एंड B2 इस तरीके से चूज करो, दे शुड बी चोजन इन सच अ वे, इस तरीके से चूज करो दैट रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर,
इसको हम लोग RSS भी बोलते हैं, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है? समेशन EI स्क्वायर। तो जो भी आपके पास सैंपल है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, E1 स्क्वायर, E2 स्क्वायर, E3 स्क्वायर, ये सबको आप ऐड करके जब सारे को ऐड कर देते हो, देन यू गेट रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सो रेसिडुअल्स का स्क्वायर करके सम कर रहे हो। सो एक्चुअली इफ यू ऐड ऑल ऑफ दीज you will be getting residual sum of square। ठीक है, सो ये मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स क्या बोलता है कि B1 और B2 को ऐसे चूज करो सच दैट ये जो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है, समेशन EI स्क्वायर, दैट इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। और ये जितना छोटा होगा उतना ही आप अपनी एक्चुअल वैल्यूज के नजदीक रहोगे। This is the entire philosophy behind this method of ordinary least squares. Does that make sense? Or does it feel like कि बड़ा mechanical है, कोई logic नहीं लग रहा है? Yeah, guys, is it making sense to you? Yes, ma'am. Okay, Manya thinks it is logical. Dimple, Sanskriti, guys. Yes, ma'am. Okay, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? कोई भी डाउट है अभी तक? No, ma'am. चलो ओके, तो अब जो है हमारा मैथ्स आना जो है स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, सो गाइज लेट्स टेक अ क्विक 2-3 minutes ब्रेक एंड देन वी विल जो स्टार्ट अगेन। ठीक है, इट्स 5:58 राइट नाउ, मे बी लेट्स कम बैक इन 5 minutes। हाँ, सो इट्स 58 राइट नाउ, लेट्स कम बैक एट 6:03। मैम कितनी देर हो चलेगी क्लास? Okay, so we've just understood what is the ordinary least square method telling us. So that method is telling us कि आपका काम है B1 B2 एस्टिमेट करना। तो मेथड क्या बोल रहा है कि B1 और B2 ऐसे चूज करो कि जो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल Y वैल्यूज और जो आपका मॉडल या जो भी आप कर रहे हो उससे जो प्रिडिक्ट कर रहे हो उनके बीच में सबसे मिनिमम डिफरेंस हो। ठीक है, बिटवीन ऑल द वैल्यूज। सो बेसिकली अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ कि मेरा मेथड क्या बोल रहा है, तो मेथड इज सेइंग कि you minimize, what do you minimize? You minimize your residual sum of square। आपका काम क्या है कि choose B1 and B2 such that this particular expression, this value is minimized। इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, वो वाले B1 और B2 वैल्यू चूज करो। ठीक है, सो अब तो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो गई। हम जब यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करते थे तब हम लोग क्या बोलते थे कि ऐसे x1 और ऐसे x और y चूज करो सच दैट आपका जो यूटिलिटी फंक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाए गिवन अ पर्टिकुलर बजट कंस्ट्रेंट। राइट, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि ऐसे B1 और B2 चूज करो सच दैट ये जो एक्सप्रेशन है ये मिनिमाइज हो जाए। राइट, सो अब ये चीज कैसे होगी, हमें फिर से फिर से ऑप्टिमाइजेशन के टेक्निक्स यूज करने हैं। उसी से हमें पता चलेगा कि अच्छा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ B1 एंड B2 विल दिस टर्न आउट टू बी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सो अब ये वाला जो फंक्शन है समेशन EI स्क्वायर, जिसको हम लोग RSS भी बोल रहे हैं, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, अब ये क्या एक्सप्रेशन लेता है? ठीक है, सो जब आप इसको अच्छे से लिखते हो तो व्हाट इज दिस, समेशन EI स्क्वायर इज नथिंग बट समेशन EI क्या है, आपकी एक्चुअल YI वैल्यू माइनस जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो और उसका आप स्क्वायर करके सम कर रहे हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करोगे तो क्या हो रहा है, YI माइनस, अब ये जो YI हैट है ये आप कैसे निकाल रहे हो, B1 माइनस B2 XI स्क्वायर। राइट, सो इस तरीके से जो है आप इस चीज को सम कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज योर रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। तो
जब आपको सैंपल, व्हेन यू हैव योर सैंपल, सो सैंपल का मतलब क्या है, यू हैव डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लाइक x1 y1, ये एक पेयर हो गया, x2 y2, मान लो ऐसे आपके पास n ऑब्जर्वेशंस हैं. सो व्हेनेवर यू हैव एक्सेस टू द सैंपल, ये yi वैल्यूज नोन होती हैं, ये xi वैल्यूज भी नोन होती हैं. तो फिर अननोन क्या है इसमें? व्हाट इज द अननोन इन दिस RSS एक्सप्रेशन हियर? सो आपको B1 नहीं पता और आपको B2 भी नहीं पता. सो एक तरीके से कैन आई मेक दिस स्टेटमेंट दैट RSS इज अ फंक्शन of B1 and B2? Small b1 and small b2. Can I say that? Will that be fine if I say that? Right? क्योंकि सैंपल डेटा पे तो पूरी एक्सेस है आपको, ये सारे वैल्यूज क्या क्या होंगे ये सब आपको पता है. ठीक है, तो आपका काम क्या होगा, गिवन अ सैंपल डेटा B1 और B2 की वैल्यू पता करो. ठीक है, तो y1 y2 y3 y4 जो भी है वो सब आपको पता होगा, x1 x2 x3 ये सब भी पता होगा. व्हाट इज द ओनली अननोन हियर? द ओनली अननोन हियर इज B1 एंड B2. और आपको जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स है वो क्या बोल रहा है कि B1 और B2 ऐसे चूज करो कि ये जो एक्सप्रेशन है ये सबसे मिनिमम वैल्यू ले ले. राइट? Are we clear with this? So basically you have to minimize this expression. Right? I have to minimize this by choosing B1 and B2. Are we clear till this point? ठीक है? All good? यस मैम. ठीक है, अब आपका काम क्या है, अब आपको ये फंक्शन मिनिमाइज करना है. कोई भी फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जब हमें करना होता है, व्हाट इज द जनरल प्रोसीजर दैट वी फॉलो? क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस. फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस. तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस मतलब क्या क्या, किस किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? हम B1 के रिस्पेक्ट में करेंगे और B2 के रिस्पेक्ट में करेंगे. सो Difference. परफेक्ट. सो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस निकाल के लानी है. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस चाहिए हमें. ठीक है, एक बारी हम ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, P1. ठीक है, सो एंड देन उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू B2 एंड देन विद रिस्पेक्ट टू B2. वो जो एक्सप्रेशन आएगा उसके बाद maybe we will solve them, simplify them, and then we will come up with a particular value expression for B1 and an expression for B2. ठीक है, so something I am giving you as a homework. अब आपको क्या करना है वो चीज हम लोग क्लास में भी करेंगे, बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई दैट फर्स्ट. ठीक है, सबसे पहले तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या है, आप पहले ये चीज 1 के लिए करोगे, फिर प्लस y2 प्लस y3, ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब ये है. ठीक है, सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट. Try to figure out what is the first order condition with respect to B1, what is the first order condition with respect to B2. So जब आप करोगे तो ये जो x's हैं ये क्या है, ये given है, तो इसको constant मानोगे. सिर्फ B1 और B2 जो है ये unknown है, ये वेरिएबल है आपके लिए. आपका टास्क है अलग अलग B1 B2 आप चूज कर सकते हो, तो आपके लिए ये वेरिएबल है. So try to figure out what are the first order conditions that you are going to get. So I'm just going to tell you what are we going to get finally. ठीक है, I will do all of that in class also, don't worry, but try it on your own once before coming for the class tomorrow. ठीक है, so आपको जो expression मिलेगा आपके पास, I am giving you 2 equations. Try to see if you can get those 2 equations or not. ठीक है, so the 2 equations that you should get are summation yi, that is equals to n times B1 plus B2 summation xi. That is your first equation.
and summation yi xi equals to b1 summation xi plus b2 summation xi square. ठीक है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन दैट यू गेट. ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये दो इक्वेशंस है, वी कॉल देम नॉर्मल इक्वेशंस. ठीक है, the first one is the first normal equation, second one is the second normal equations. These two equations that you will get when you do the first order conditions with respect to b1 and b2. ठीक है, so try to figure the things out on your own first, and then for tomorrow what we will do is I will do this entire derivation with you, and we will see if you guys were able to do that or not. Try it on your own. ठीक है, you will be able to get it. Just एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि ये वैल्यूज जो है i इक्वल्स टू 1 to लेके n तक है, एंड ये जो समेशन है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? पहले ये चीज आपने 1 के लिए की स्क्वायर, फिर 2 के लिए स्क्वायर, फिर 3 के लिए, ऐसे ये सम, दिस इज द समेशन दैट यू हैव. ठीक है, so try and do that. For tomorrow we will do this entire question in class, entire derivation in class, and then there are some mathematical concepts related to this only, so we will try and do all of that also. So that will be our agenda for tomorrow. ठीक है, so yeah. मैम Yeah. जब हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू b1 जैसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले हम i को 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर अब टिल n तक लेंगे. तो हाँ, उससे तो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस आ जाएंगे, फिर एंड में हम उन इक्वेशंस को ऐड करके फाइनल इक्वेशन आएगी हाँ, वाली. बेसिकली देखो, अब जैसे मैंने तो इतनी बार कर लिया तो मुझे तो पता है कि क्या आने वाला है. ठीक है, बट आई एम सेइंग कि आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो टू सी व्हाट पैटर्न कम्स अप. आपको रियलाइज होगा कि सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है जिसको आप समेशन का यूज करके लिख सकते हो. यू गेटिंग मी? सो जैसे मान लो यू हैव समथिंग लाइक दिस कि भाई b1 और xi स्क्वायर इसका समेशन है मान लो. ठीक है, एंड समेशन इज i फ्रॉम 1 to n मान लो. ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या एक्सप्रेशन है? दिस इज एक्चुअली व्हाट b1 x1 स्क्वायर प्लस b2 x2 स्क्वायर प्लस इस तरीके से चल रहा है. और आपको कोई बोल दे कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है इसको b1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो. ठीक है, तो आप क्या करोगे? अच्छा, इसको b1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो b1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे होगा? अगर b1 को रिस्पेक्ट में करना है तो b1 इज द वेरिएबल, दिस इज अ कांस्टेंट. सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन हियर? 2x1 b1. नो, यही तो. x1 तो मेरे को पता है, तो इट्स अ कांस्टेंट, राइट? यस मैम. सो जो अच्छा, x1 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस, 0. सॉरी यहाँ पे b1 है, ये हर जगह b1 ही है, ये b1 हर जगह b1 है. तो क्या होगा यहाँ पे? x2 टू स्क्वायर. स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर, ऐसे हो रहा है, राइट? तो क्या मैं इस पूरी चीज को ऐसे नहीं लिख सकती? समेशन एक्स आई स्क्वायर, राइट? लिख सकती हूँ. Yes, ma'am. ठीक है, तो लाइक दैट्स द सेम लॉजिक कि क्या हो रहा है कि दिस इज द एंटायर एक्सप्रेशन दैट यू हैव. इफ यू सी क्लियरली, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखोगे तो क्या होगा? यू विल सी द पैटर्न. व्हाट इज द पैटर्न? तो यहाँ पे सिर्फ जो चीज को ध्यान रखने की है वो ये है कि xi और yi, the moment you have a sample, you know these values, so these values will be constant. ठीक है, y1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, y4 क्या है, सब पता है मुझे. ठीक है, तो वो चीजें कांस्टेंट हैं. और आप फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू b1 और b2 निकाल रहे हो. इसका मतलब क्या है? यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू b1. सो डोंट मेक दिस मिस्टेक that let's do 2x1, because that is possible जब आप x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो. ठीक है, is that fine? Okay, all right.
Yes, ma'am. Okay, तो या सो ओके ऑल राइट. सो हमारा तरीका क्या निकला? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स ने क्या बोला कि ऐसी B1 B2 एस्टिमेट्स लेके आओ ताकि आप अपनी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनके जितने नजदीक प्रिडिक्शंस दे पाओ उतना अच्छा है. सो दैट सीम्स रीजनेबल एंड लॉजिकल टू अस एंड दैट्स व्हाट वी विल बी फॉलोइंग एंड विल सी कि अच्छा B1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए और B2 की क्या वैल्यू आनी चाहिए. ठीक है. So that will be our agenda for tomorrow. We'll do all of this, all the mathematical part, and then, I think tomorrow we will be done with chapter 2 as well. Okay. So we'll start with 3rd probably. Okay. Guys, I think that's it for today from my side. If you have any doubts, so we can ask. Otherwise, the class is over. Thank you.